Today we are starting with the topic a sales book. Okay, this is very simple book as we have done in purchase book. Purchase book records all the credit purchases. Sales book records all the credit sale of goods. It is similar to purchase book since transaction of sales are very common because we sold goods on a regular basis. That's why entries of sales book are much more. Okay, so instead of passing journal entries of each and every sales, what we do is we prepare a single book and we record all the transaction of goods sold on credit in this sales book. What about the cash transactions? They will go to the cash book only. Okay, so credit sales of goods are recorded in sales book. The credit sales will include sales of only those goods which in which firm deals. Only the goods in which firm is dealing. No other goods will be, no other sale of another item will be recorded in sales book, like sale of asset, sale of furniture will not go in sales book if the business is not related to that furniture. Okay, only the goods in which firm is dealing will go in sales book. For example, a firm is doing stationery business, so all books, purchase of books, or sale of books will go in the sale book. Okay, so sale book is also called sales table. Okay, all the transactions relating to sales that are made in cash are recorded in cash book, similar to the purchase book, and not in sales book. Very important, the cash transactions, cash sales will go in the cash book and credit sales will go in sales book. ओके, तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, एक समरी सी बना दी है. ओके, तो अगर कैश सेल्स है, इफ़ देर आर कैश सेल्स, दे विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड नॉट इन द सेल्स बुक. एंड सेल ऑफ एसेट अगर है तो सेल ऑफ एसेट, ओनली द क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड इन दिस बुक. ओके, इन केस अगर हम एसेट लाइक फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग बेचते हैं तो ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द sales. Now we are discussing the format of sales book. This is very similar to that of purchase book. Okay, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ पहले जाके परचेज बुक वाला वीडियो देख लें, उसके बाद ये वाला देखें तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. तो फर्स्ट कॉलम हमारा यहाँ पे वही सिंपल डेट कॉलम है, लाइक सिमिलर टू द दिस होल फॉर्मेट इज सिमिलर टू दैट परचेज बुक वाला. ओके, तो पहला डेट कॉलम है. Another one is invoice number. Invoice number is the bill number only. The column which is जो दूसरा है column which is not similar to that purchase book is name of the customer. In purchase book we used to write name of the supplier, but in sales book we'll write name of the customer, account to be debited. यहीं पे ही आपका journal entry का रूल लग जाता है. That's why हम journal entry पास नहीं करते. Okay, तो name of the customer, account to be debited. Then next is LF column, then details column. यहाँ तक परचेज बुक आपकी, यहाँ तक जो सेल बुक है वो सिमिलर टू परचेज बुक है, पर उसके बाद ये जो चार कॉलम्स हैं थोड़े आपको डिफरेंट लगेंगे. ओके, बिकॉज इसमें क्या कहते हैं आपका, इसमें आपको अब आउटपुट जीएसटी दिखने लग जाएगा. ओके, तो सेल्स में हम यहाँ कॉस्ट डालेंगे. दिस ग्रीन वाला जो मैंने ग्रीन किया है इसमें हम सिर्फ बाइफर्केशन लिखते हैं. डिटेल्ड कॉलम का बाइफर्केशन इन ग्रीन कॉलम्स में आता है, सिमिलर टू द परचेज. ओके, सेल्स में वी राइट द ओनली द अमाउंट ऑफ सेल्स ओनली, एंड हेयर वी राइट जीएसटीज एज पर द रूल, जो रूल लगेगा. इफ़ विद इन द स्टेट है तो आउटपुट CGST SGST लगेगा. इफ़ आउटसाइड द स्टेट है तो IGST लगेगा. एंड देन यहाँ पे हम टोटल कर देंगे. दिस टोटल शुड मैच विद दिस टोटल. ओके, वेरी सिंपल. अगर फॉर एग्जांपल अगर हम देहरादून के डीलर हैं तो वी आर सेलिंग गुड्स टू XYZ एंड कंपनी देहरादून, तो यहाँ पे हम वो ग्रॉस अमाउंट लिख देंगे एंड वील डिडक्ट द ट्रेड डिस्काउंट इफ एनी, एंड देन बिल अमाउंट विल कम. तो ये बिल अमाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आई हैव रोट टू मेक यू अंडरस्टैंड. ओके, तो यहाँ पे आप बिल अमाउंट लिख देंगे एंड बिल अमाउंट पे CGST SGST कैलकुलेट हो जाएगा एज पर द क्वेश्चन. ओके, एंड अगर कोई आउटसाइड पार्टी है, अगर मान लीजिए हमारे स्टेट से दूसरे स्टेट में हम गुड्स बेच रहे हैं तो आप उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे. फॉर एग्जांपल दिल्ली, इफ़ वी आर इन देहरादून. ओके, तो यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट आ जाएगा, वील डिडक्ट द ट्रेड डिस्काउंट इन द सिमिलर फैशन, एंड देन बिल अमाउंट आ जाएगा, एंड उसके बाद आपका
यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा एंड IGST विल ऑल्सो कम, क्योंकि वो बाहर की पार्टी थी इसलिए IGST आ जाएगा। ओके, IGST आ जाएगा एंड देन अमाउंट यहाँ पे हम टोटल कर देंगे एंड देन we'll give bifurcation here, okay, in this yellow part, okay, and this total should match with this total and in last part हम एक ग्रॉस टोटल कर देंगे यहाँ पे, ओके, ग्रॉस टोटल कर देंगे और आपकी सेल्स बुक तैयार हो जाएगी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ओके, सो एग्जाम्पल नंबर वन में हमारा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एग्जाम्पल नंबर 1 में दिख जाएगा, क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर सेल्स बुक ऑफ MS या मेसर्स सौरभ मेहता एंड सन्स दिल्ली। तो रिमेंबर ये दिल्ली के लोग हैं, ओके, और ये डीलर्स किसके हैं, दीज आर द डीलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डीलर्स ऑफ स्टेशनरी, बिकॉज हम सिर्फ स्टेशनरी रिलेटेड चीज़ें ही सेल्स बुक में डालेंगे, अदरवाइज हम और कोई चीज़ सेल्स बुक में नहीं डालेंगे, स्टेशनरी ही सेल्स बुक में जाएगी, क्योंकि क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स ये बुक रिकॉर्ड करती है, ओके, एंड GST इज हेयर इज 66%, ओके। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस ध्यान रखिएगा दे आर डीलर्स ऑफ स्टेशनरी के अलावा कुछ भी चीज़ बेचेंगे तो सेल्स बुक में नहीं आएगी, ओके। तो लेट्स स्टार्ट, ओके। तो पहली चीज़ जो आपके सामने दिख रही है वो है सोल्ड टू एस्पायर लिमिटेड ऑन क्रेडिट इनवॉइस नंबर 101। तो ओनली क्रेडिट सेल्स यहाँ पे आती हैं। तो आप देखिए 1 जनवरी को हमने किसको, इनवॉइस नंबर भी हमें यहाँ पे गिवन है तो हम इनवॉइस नंबर लिख देंगे और नेम ऑफ द कस्टमर लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे नेम ऑफ द कस्टमर, ओके। और यहाँ पे जो GST का कॉलम रहेगा वो आपका आउटपुट का रहेगा, ओके, आई एम सो सॉरी, आउटपुट का रहेगा यहाँ पे आपका कॉलम एंड सिमिलर वे यहाँ भी आउटपुट का रहेगा, ओके। सेल्स के साथ आउटपुट CGST आता है, ओके। तो पहला हमारे पास इनवॉइस नंबर 1 है और कस्टमर का नाम है एस्पायर लिमिटेड। तो एस्पायर लिमिटेड हम यहाँ पे लिखेंगे, ओके। एस्पायर लिमिटेड ने एस्पायर लिमिटेड को हमने बेचा है क्या, हमने बेचा है, आप ध्यान से देखेंगे तो 3 रिम्स ऑफ वाइट पेपर ऑफ 300 ईच। ये तो सिंपल, ये भी क्या कहते हैं, आप ये कह सकते हैं ये स्टेशनरी आइटम है, तो हम इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने इसे रिकॉर्ड कर दिया, इसे यहाँ लिखा 3 रिम्स ऑफ वाइट पेपर ऑफ 300 ईच, ओके। तो 300 पर रेम लिखा है, ओके। तो यहाँ पे आप 300 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ जाएगा। तो 900 आप यहाँ पे लिख देंगे डिटेल कॉलम में। और हमने इससे कुछ नहीं खरीदा, कोई डिस्काउंट भी नहीं है, तो इस पे GST हम लगाएंगे, ऐड GST। आप ये देखिए कौन सा वाला, ऊपर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में लिखा है अज्यूमिंग ऑल द ट्रांजैक्शन टुक प्लेस इन दिल्ली। तो ये सारे लोकल सेल्स हैं, तो आप यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, CGST SGST। तो आप यहाँ पे लगाएंगे CGST एट द रेट 6%, ओके, एट द रेट 6% आप लगाएंगे एंड सिमिलर वे में आप SGST भी लगाएंगे, SGST भी लगाएंगे आप कितना, 6%, ओके। तो इस पर GST कैलकुलेट कर लेते हैं, 900 का 6%, 9 6 54, तो 54 आपका GST आ जाएगा, ओके। सिमिलरली 54 SGST भी आ जाएगा। तो आपका टोटल अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा, टोटल अमाउंट हमारा जो आएगा वो आ जाएगा 1008, ओके। बस आप यहाँ पे करेंगे क्या, बस आप यहाँ पे कॉस्ट लिख देंगे, कॉस्ट आपकी 900 थी, इसमें जो GST का रेट था वो 54 था और यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा, ओके। तो ये वाला टोटल शुड मैच विद दिस, ये वाला टोटल, ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अब देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है आपका, आप नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलेंगे तो आपको दिख जाएगा सोल्ड टू सिंह एंटरप्राइज इनवॉइस 102। अब यहाँ पे नाम लिखा है तो हम अज्यूम करेंगे कि ये क्या है, क्रेडिट में हमने बेचा होगा, ओके। और बेचा हमने क्या है, 2 डजन चेलपाक इंपोर्ट्स बेचे हमने। तो डेट आप यहाँ पे लिखेंगे, पहले डेट है 2 जनवरी, 2 जनवरी को हमने क्या बेचा है, इनवॉइस नंबर हमें 102 दिया हुआ है, हमने किसको बेचा है, सिंह एंटरप्राइजेस को। तो यहाँ पे आप सिंह एंटरप्राइजेस लिख देंगे, ओके। सिंह एंटरप्राइज को हमने 2 डजन, आप ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, यहाँ लिखा 2 डजन चेलपाक इंक्स ऑफ 200 ईच। हमने क्या किया, चेलपाक इंक बेची है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आप 2 डजन है, मतलब 12 यूनिट्स हैं, पर यहाँ पे आपको प्राइस पर डजन का दिया हुआ है, तो वेरी सिंपल हो गया, ये 2400 आप यहाँ पे
लिख देंगे 200 इंटू 2। अगर मान लीजिए यूनिट्स होता तो आपको 12 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। अब आप इसको देख लीजिए, ये सब लोकल सेल्स है हमारी, तो इसमें दोबारा से जीएसटी लग जाएगा आपका, लोकल वाला जीएसटी कितना लगेगा 2400 का 6%। ओके, दैट कम्स टू 144, तो 144 आपका फिर से आ जाएगा यहाँ पे। ओके, हम एक बार इसका टोटल कर देंगे, तो टोटल आ रहा है हमारा, टोटल हमारा आ जाएगा इसमें, टोटल विल कम टू 2688। अब यहाँ पे आप बाइफर्केशन दे देंगे सर, यहाँ पे आप कॉलम एक बार चेंज कर लेंगे, सेल्स का कॉलम है। ओके, तो यहाँ पे बाइफर्केशन में हम यहाँ पे लिख देंगे परचेज का जो हमारा अमाउंट था, और यहाँ पे हम अपनी जीएसटीज लिख देंगे 144, और यहाँ पे हम सिमिलर वे में टोटल कर देंगे जैसे हमने ऊपर किया था 2688। ओके जी, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अनिकेत, इनवॉइस नंबर 103। ये भी आप देखेंगे, ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है हमारी। ओके, तो 25 जन हमने 103 इनवॉइस पे जो बेचा है, 103 पे हमने किसको बेचा है, हमने एम एस अनिकेत को। आप देखेंगे तो आप यहाँ पूरा आपको कस्टमर का नाम लिखना पड़ेगा, एम एस अनिकेत एंड कंपनी। एम एस अनिकेत एंड कंपनी को हमने क्या बेचे हैं, 25 वाइट बोर्ड्स बेचे। ये भी स्टेशनरी आइटम है, हमने 25 वाइट बोर्ड्स बेचे हैं। ओके, ऑफ 100 पर पीस बेचा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2500। ओके, क्योंकि ये लोकल सेल है, हमने अज्यूम कर रखा है, क्वेश्चन में ही लिखा है अज्यूम करने को कि ये लोकल सेल्स है, तो हमने यहाँ पे जीएसटीज पे लगा देंगे लोकल वाला ही 2500 इंटू 6%, दिस कम्स टू 150 एंड दिस कम्स टू 150 अगेन। ओके, अब हम यहाँ पे अपना टोटल कर देंगे। सो हमारा जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 2800। तो परचेज हमने सेल हमने किया था 2500 का, और 150 का जीएसटी आ गया एंड 150 का जीएसटी आ गया, तो टोटल हमारा यहाँ पे 2800 ही लिखना है। ओके, हमारी परचेज बुक का ये टोटल आ गया, सेल बुक का हमारा ये टोटल आ गया। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ग्रैंड टोटल, ये हमारा ग्रैंड टोटल है। ओके, तो हमारी पूरी सेल बुक बन गई। अब आप देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आप बाकी के ट्रांजैक्शंस देखें तो यहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर बेचा है, तो ट्रांजिस्टर क्योंकि हम स्टेशनरी का काम कर रहे हैं तो ट्रांजिस्टर्स सेल बुक में नहीं आएगा, वो अपना जर्नल में जाता रहेगा। फिर आप यहाँ पे देखें हमने चेयर बेची है, तो चेयर बेचना भी हम स्टेशनरी वाले का काम नहीं होता, इसलिए ये भी जर्नल में जाएगा। तो ये जो है ये जर्नल में जाएगा, यहाँ पे सिर्फ हमारे जो गुड्स परचेज होंगे वही जाएगा। और लास्ट में आप देखें बेचा तो हमने स्टेशनरी आइटम है बट फॉर कैश बेचा, दिस विल गो इन कैश बुक। ओके, तो ये हमारी सेल्स बुक रेडी है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सिंपल, इसमें 3 ट्रांजैक्शंस तो किसी काम की थी नहीं। तो सेल्स बुक आप देखेंगे तो आपको 1 गो में आपको ऐसी दिखेगी। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। ओके, एक और एग्जाम्पल है, थोड़ा टफ एग्जाम्पल हम लेते हैं नेक्स्ट वाला। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे तो रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सेल बुक ऑफ एम एस अजंता इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसका काम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बेचने का है, और ये रांची बेस्ड एंटरप्राइज है, रांचीज इन झारखंड। ओके, अज्यूमिंग CGST SGST इज 99%। तो इससे आपको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि IGST 18% का लगेगा। ओके, अब देखेंगे तो पहले हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो जो निकल के आ रही है, तो हमने फॉर्मेट बना लिया। एक बार आप फॉर्मेट देख लीजिए, फॉर्मेट इसमें ऐसा होगा। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसमें थोड़ी सी गलती है। यहाँ पे आप सेल्स कर देंगे और यहाँ पे आप आउटपुट कर देंगे। ओके, ये भी आपका आउटपुट हो जाएगा। ओके, और ये भी हमारा आउटपुट हो जाएगा। आउटपुट IGST इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे हम इंटरस्टेट सेल्स भी करेंगे। ओके, अब आप यहाँ पे सोल्यूशन देखिए, आपको सोल्यूशन में क्लियर ऊपर आप अपना नाम लिख दीजिएगा इंटरप्राइजेस का, और ये झारखंड बेस्ड है, ध्यान रखिएगा। तो झारखंड के अंदर अगर सेल होगी तो CGST SGST, एंड झारखंड के बाहर होगी तो IGST होगा। तो हम कर रहे हैं पहली ट्रांजैक्शन आप देखेंगे तो आपको दिखेगी सोल्ड टू वंदना इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता। अब ये आउटसाइड द स्टेट हो गया। वाइड इनवॉइस नंबर 1255। तो 1 मार्च को हमने 1255 इनवॉइस से हमने गुड्स बेचे हैं वंदना इलेक्ट्रॉनिक्स को।
तो वंदना इलेक्ट्रॉनिक्स आप यहाँ पे लिखेंगे, वंदना इलेक्ट्रॉनिक्स। वंदना इलेक्ट्रॉनिक कहाँ के हैं ये कोलकाता के हैं, ठीक है। तो कोलकाता हमने लिख दिया। हमने क्या लिए, दो चीज़ें ली हैं वंदना इलेक्ट्रॉनिक से, 50 म्यूजिकल अलार्म क्लॉक्स ली हैं ऑफ 800 ईच, एंड हमने 40 वॉल क्लॉक्स लिए 500 ईच की, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 800 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 800 हमने 800 रुपये की वॉल क्लॉक है, एंड टोटल यूनिट्स आर 50। तो हमने 40,000 की वॉल क्लॉक्स ली हैं, और इधर भी सिमिलर वे में हमने 40 वॉल क्लॉक्स बेची हैं, ओके, 500 ईच की। तो हमारा टोटल अमाउंट 60,000 की हमारी सेल है। ये हमारा बिल अमाउंट आ गया। अब चेक करिए कोई सॉरी, ये हमारा नेट अमाउंट आ गया। इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है, तो इसके बाद बिल अमाउंट आएगा। तो लेस करेंगे हम इसमें से ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट कितना परसेंट है, आप देखिए 20% आपको गिवन है, ओके 20%। तो 20% हम 60 का निकालेंगे तो इट विल, ये आएगा हमारा 12,000, ओके। 10% 6,000 हो जाएगा। तो हमारा जो 20% निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा 12,000। तो ऐसे आप जल्दी भी कर सकते हैं। तो सॉरी 20%, ओके। तो ये हमारा 12 आ गया, 12 में डिडक्ट कर लिया, तो ये हमारा बिल अमाउंट आ गया। बिल अमाउंट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ अंडरस्टूड। ट्रेड डिस्काउंट के बाद बिल अमाउंट हमारा ये आ गया। इस बिल अमाउंट पे अब देखेंगे हम कौन सा जीएसटी लगाएंगे, क्योंकि आउटसाइड द स्टेट सेल्स है तो हम इस पर लगाएंगे आईजीएसटी। हम इसमें ऐड कर देंगे आईजीएसटी एट द रेट 20%, सॉरी 18%, क्योंकि 99% हमें क्वेश्चन में गिवन था। आप एक बार देखिए, ये देखिए 99% में सीजीएसटी एसजीएसटी गिवन है, तो ऑब्वियसली आईजीएसटी कितना हो जाएगा, 18% हो जाएगा। तो हम 48,000 का 18% निकालेंगे। तो 48,000 का आप निकालेंगे 18%, तो ये आ जाएगा हमारा 8640। तो टोटल अमाउंट हमने जो सेल की 56640। बस आपने यहाँ करना है, यहाँ सिर्फ आपने कॉस्ट देनी है, यहाँ पे आपने बिल अमाउंट लिखना है, यहाँ पे आपने जीएसटी लिखना है। अब ये वाला तो था नहीं, ये वाला था नहीं, तो आप आउटपुट लिख देंगे, तो आपका टोटल ये दोनों के दोनों मैच हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अब हमने बेचा है मोहन वॉच कंपनी को, वॉच बेचे। ये भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम, पर आप ये देख लीजिए क्रेडिट है या कैश है। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, नाम लिखा है तो हम मानेंगे क्रेडिट है। तो 10 मार्च को हमने क्या किया, बिल नंबर है 1256। हमने इस बिल के अंदर मोहन, जो हमारा कस्टमर है, मोहन वॉच कंपनी जो हमारा है, इसको हमने 25 डीलक्स वॉल क्लॉक्स बेची हैं, 800 की एक बेची है। अब ये है कहाँ का, ये देख लीजिए, ये है पटना इज़ इन बिहार एंड इट इज़ आउटसाइड झारखंड, ओके। सो 25 वॉल क्लॉक्स बेची हैं, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 800 ईच, बिकॉज ईच लिखा है तो आपने 820 को मान लिया। 20,000 की वॉल क्लॉक्स हमने बेची है। आप चेक करिए डिस्काउंट है, यस डिस्काउंट है सेम। यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो है आपका 10% है, तो हमने 10% लिख दिया। इसका 10% 2,000 होता है। आप इसका क्या कहते हैं जी, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट आप माइनस कर देंगे तो विल कम टू 18,000। अब इस पर आप जीएसटी लगा लीजिए। अब जीएसटी कौन सा लगे, क्योंकि बिहार में है, बिहार झारखंड के बाहर है, तो जीएसटी आपका वही 18% लग जाएगा। तो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 18%, तो दिस कम्स टू 3240। तो आपका टोटल अमाउंट जो आएगा, टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा इन दोनों को प्लस करके, ठीक है। टोटल अमाउंट 21240 आ गया। बस अब आपको यहाँ पे सिर्फ बाइफर्केशन करना है, बहुत सिंपल है, ओके। ये जीएसटी था नहीं, ये था नहीं, ओके। 3240 विल कम है एंड टोटल आपका हो जाएगा, ओके। वेरी सिंपल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 15 मार्च की है। ये कह रही है सोल्ड टू सुपीरियर वॉच कंपनी रांची। ये हमारी लोकल सेल्स हो गई, ओके। बेची हमने वॉल क्लॉक्स ही है, तो ये भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम, हमारे गुड्स ही हैं। तो 15 मार्च को आपका जो बिल नंबर है 1257 है। इसमें हमने किसको बेचा है, सुपीरियर वॉच कंपनी। सुपीरियर वॉच कंपनी ये कहाँ की, ये अपने झारखंड की है। तो रांची हमने लिख दिया, हमारी लोकल सेल्स हो गई। हमने क्या क्या बेचा है, दो चीज़ें बेची हैं उसको। सुपीरियर डीलक्स हमने वॉल क्लॉक्स बेची हैं, ये भी बेची है, ओके। अब आपने करना क्या है, बड़ा सिंपल है। आपने बस इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अमाउंट लिखना है, दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल। तो आप क्या करेंगे, 75 मल्टीप्लाई बाय करेंगे आप
800, तो दिस कम्स टू 60,000 एंड आप यहाँ पे करेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो दिस कम्स टू 40,000। तो आपका टोटल जो आ जाएगा वो 1 लाख आ जाएगा। ये 1 लाख आपका नेट अमाउंट आ गया। ओके, ये 1 लाख आ गया। इसके बाद आप देखिए ट्रेड डिस्काउंट है, यस ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट आप लेस कर देंगे 15%। ओके, 15% ट्रेड डिस्काउंट आप निकाल देंगे तो 15,000 आ जाएगा। तो हमारा जो नेट सेल्स हो गई वो 85,000 की हो गई। ओके, वेरी सिंपल। अब आप देख लीजिए क्योंकि विद इन द स्टेट है तो आप इस पर CGST SGST लगाएंगे। ओके, तो ऐड CGST @ आप लगाएंगे @9%। ओके, सो और ऐसे ही आप ऐड कर देंगे SGST। ठीक है, ओके, तो 85,000 मल्टीप्लाई बाय 9%, तो इट कम्स टू 7650 एंड अगेन 7650। तो आपका टोटल अमाउंट अब आ जाएगा। टोटल अमाउंट आप निकाल सकते हैं बाय एडिंग these 3। ओके, तो दिस कम्स टू 100,300। ओके, अब व्हाट यू डू इज़ यहाँ पे आप नेट अमाउंट लिख देंगे, यहाँ पे आप GST का अमाउंट लिख देंगे 7650। ओके, 7650। ओके, IGST इस बार 0 है। ओके, एंड टोटल आपका वही आ जाएगा 100,300। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज सेइंग सोल्ड टू मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स बट वाइड अ कैश मेमो। कैश मेमो इज नॉट रिकॉर्डेड हियर, इट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश मेमो। सो यहाँ पे एंट्री नहीं होगी। ओके, थैंक यू सो मच। ये हमारी सेल्स बुक कंप्लीट हो गई है। ठीक है, हम कुछ एग्जांपल्स अपनी ऑनलाइन क्लास में कर लेंगे। ओके, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। यहाँ पे आप अपना फाइनली आप टोटल कर लेंगे, लास्ट जो आपका टोटल आ रहा है। ओके, तो दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल, आप एक बार देख लीजिए। ओके, सेल्स बुक में पूरी दिखा देता हूँ आपको। दिस इज़ योर सेल्स बुक। ओके, बहुत सिंपल है इसे बनाना, इसमें कोई जर्नल एंट्री के रूल्स नहीं लग रहे। बस आपको देखना है कि वो कैश बुक में वो ट्रांजैक्शन आएगी या नहीं, बस आपको रिकॉर्ड करते हुए चले जाना। वेरी सिंपल, थैंक यू।